السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ لوگ؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بہت بہتر. الحمدللہ. جی بتائیں، کوئی ایسی بات کریں جو بالکل فاصل ہو، فرق کرنے والی ہو، فیصلہ کرنے والی ہو. ایسی کوئی بات کریے، کیونکہ کچھ منٹ ہے ہمارے پاس، اسٹریم کا بہت زیادہ وقت نہیں بچا ہے. لیکن میں چاہ رہا ہوں ایک بہت ڈسیسو بات آپ کے ساتھ میں ہو. تو آپ کو جو ہم سارے دلائل پیش کر رہے ہیں، کئی سٹریمز ہو چکی ہیں، کئی ساری ویڈیوز ہیں. اگر آپ ہمارے چینل کے ہوم پیج پہ جائیں گے تو انجینئر علی مرزا کے تعلق سے بہت ساری ویڈیوز اختلاف کا حل کے ہوم پیج پہ آپ کو ملے گی. تو آپ نے کیا دیکھا ہے ہماری کچھ ویڈیوز یا کچھ فالو کیا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں اس تعلق سے؟ بالکل، آپ کو بھی دیکھا ہے، شیخ کفایت اللہ ثناب علی کے بھی ویڈیوز دیکھا ہے. جی ٹھیک ہے. تو تو آپ کون سا سوال کرنے سوال کی پوچھنا اجازت ہے؟ چاہیں گے؟ بالکل. جی بالکل ہے. حق و باطل میں الحمدللہ، وضاحت کوئی ایٹیٹیوڈ رکھیے، اللہ سے ہدایت طلب جی. کریں، اللہ یہ ہدایت دینے والا. جی بتائیں. تو ہاں میں میری کچھ تمہیداً کچھ ایک منٹ گفتگو بول دیتا ہوں آپ کو کہ ہاں بھائی میرا سوال پورا مکمل ہونے دیجیے اور پھر تسلی سے مجھے جواب دیجیے. کوئی بھی آپ تینوں میں سے کوئی ایک بھی شیخ جواب دیجیے میرے کو، اچھا. اور پھر میں جب کاؤنٹر کرتا ہوں جب بھی میری بات تسلی سے سنیے ذرا. کوئی ایک سوال کر لینا ہے، کوئی ایک سوال کر. ایک پوائنٹ لو، اچھا سوال ہو. اچھا انشاءاللہ. جی دو بتائیے. سوال ہے میرے، دو سوال. سٹارٹ، بسم اللہ. پہلا سوال پوچھیے. پہلا سوال یہ ہے سوال پوچھیے. کہ حدیث ثقلین کے بارے میں اہل حدیث علماء، وہابی علماء کیوں بیان نہیں کرتے؟ حدیث ثقلین کو کیوں چھپاتے؟ جو اہل سنت مین صحیح مسلم شریف میں 4 حدیثیں ایک ساتھ کنٹینیوس نمبر کے ساتھ ہے، 6225 سے 6228 تک، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میرے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. پہلی چیز اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب قرآن، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہوگا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت علیہ السلام ہیں، ان کے بارے میں تمہیں میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 بار یہ جملہ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، 3 بار میں ان کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. کس کے بارے میں؟ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں. 3 بار یہ جملہ ارشاد فرما کے بعد بولے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو یہ جو حدیث ہے، حدیث ثقلین، 2 بھاری قیمتی چیزیں، یہ حدیث ہم سے بچپن سے کیوں چھپائی گئی؟ ہم کو اس کی نچلے درجے والی المستدرک للحاکم کی حدیث بتائی گئی کہ قرآن اور سنت یہ تو ہے بے شک ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، سوال آپ کا ہو گیا، آپ کا سوال ہو گیا، آپ کا سوال ہو گیا میرے بھائی. اگر آپ جی بولیے. آپ جو سوال کی حدیث کیوں چھپاتے ہیں، تو پہلے یہ تو ثابت ہو کہ حدیث چھپاتے ہیں. تو کس نے یہ حدیث چھپائی ہے؟ ارے بھائی اب میں آپ کا سوال ہو گیا نا، جواب دے رہا ہوں میں. اگر میں آپ کو اہل حدیث علماء کی کتابیں دکھا دوں جس میں انہوں نے حدیث ثقلین کا ذکر کیا ہے، تو اطمینان ہو جائے گا نا کہ اہل سنت اس حدیث کو نہیں چھپاتے ہیں. جی نہیں بالکل نہیں. میرا اطمینان تب ہوگا آپ بول رہے چھپاتے ہیں، میں بول رہا ہوں کہ آپ کو اچھا آج کے دور کے کسی عالم کی کوئی کلپ سنا دوں، آج کے دور کے کسی عالم کی کتاب میں دکھا دو تو اس نے حدیث ثقلین کا ذکر کیا، تب آپ کو اطمینان ہو جائے گا. حدیث ثقلین آج کے دور کے علماء، انجینئر محمد مرزا صاحب سے آنے سے پہلے، ارے اللہ کے بندے، میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں، میں آج کے دور کے کسی عالم کا کوئی مضمون یا کتاب جس میں حدیث ثقلین کا ذکر ہو وہ آپ کو دکھا دوں تو آپ مطمئن ہو جائیں گے نا، آپ کے دعوے کا رد ہو جائے گا نا کہ اہل حدیث علماء اس حدیث کو نہیں چھپاتے ہیں. نہیں، ناسبیت آپ لوگوں کے اندر ہے، چھپے ہوئی ناسبیت ہے آپ لوگوں کے اندر. آپ بول رہے ہیں بھائی، آپ دیکھو آپ جاہل ہو، آپ علماء کو نہیں سنتے ہو، آپ کتابیں نہیں پڑھتے ہو، آپ کو ایک چیز نہیں پتا چلی تو اس کی ذمہ دار علماء کیسے ہوں گے؟ آپ ان کو میوٹ کر دیں زید بھائی، ان کو میوٹ کر دیں، ایسے بھی اپنا ٹائم اتنے پاس ہے نہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں کوئی آپ کو اہل حدیث عالم کی کتاب یا ان کا کوئی فتویٰ نکال کر کے دکھا دوں گا جس میں انہوں نے حدیث ثقلین کا ذکر کیا ہے. آپ جو حدیث کی کتابیں جن کا ترجمہ آپ پڑھتے ہیں، جہاں سے آپ سیکھ رہے ہیں، جہاں سے آپ کا مرزا علی انجینئر حدیث ہیں، کیونکہ اس کو عربی تو آتی نہیں ہے، تو وہ جو حدیثیں جن کا ترجمہ پڑھ کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، وہ ترجمے بھی اہل حدیث علماء نے کیے ہیں، اہل سنت کے علماء نے کیے ہیں. اس پر کتابیں بھی اہل بیت کے حقوق پر باقاعدہ اہل حدیث علماء نے کتابیں لکھی ہیں. آپ اہل بیت کے حقوق پر جا کر کے یوٹیوب پر سرچ کریں گے، آپ کو اہل حدیث علماء کے مکمل دروس مل جائیں گے جس میں یہ حدیث پیش کی گئی ہے. تو آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اہل حدیث علماء چھپاتے ہیں، یہ اصل میں آپ پڑھتے نہیں اہل حدیث علماء کو. آپ نے سنا صرف مرزا علی انجینئر کو، اور آپ الزام لگا رہے ہیں کہ اہل حدیث علماء یہ حدیثیں نہیں بیان کرتے ہیں. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ
कोई अभी किताब आपको निकाल करके दे दूंगा अहले हदीस आलिम की। देखिए एक सवाल हो गया आपका और उसका जवाब मैं इंशाअल्लाह ताला अभी कोई किताब निकाल करके आपको दिखा दूंगा कि अहले हदीस उलमा इस हदीस की किताब है। मैं भी थोड़ी सी आजाद कर दूं, भाई साहब को खामोश कीजिए। नहीं जी जी मैं थोड़ी सी आजाद, शेख सरफराज इंशाल्लाह दिखाएंगे। असल में जो कह रहे हैं ना कि इस हदीस को, हदीस सकलैन को अहले हदीस छुपाते हैं, तो इस हदीस सकलैन से मुराद जिसको आप छुपाने की बात कर रहे हैं वो हदीस सकलैन है जो अली मिर्जा की गढ़ी हुई है, जो सही मुस्लिम में नहीं है। ये घंटू हदीस है आप लोगों की, जिसको कहते हैं कि अहले हदीस छुपाते हैं, और जो रियल में सही मुस्लिम में मौजूद है उसे कोई नहीं छुपाता। अहले हदीस उलमा ने फजाइल अहले बैत पर या जिक्र अहले बैत पर जो किताबें लिखी हैं उसमें बाकायदा ये बात मौजूद है, ये हदीस मौजूद है। लेकिन इन तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है ना, जो आपने फट से कह दिया नासबियत है, तो ये जो नासबियत चिल्लाते हैं, खामोश खामोश, ये जो अली मिर्जा का ग्रुप जो शोर मचाता है ना कि ये लोग हदीस को छुपाते हैं, इसकी घंटू रवायत है। और ये आज की बात नहीं, इससे पहले रवाफिज ने ये मन घड़त हदीस अपनी तरफ से घड़ा है वो मफहूम, जिसको इब्न तैमिया रहमुल्लाह बहुत सारे अहले हदीस उलमा जिसकी वजाहत कर चुके हैं। इनके दिमाग में क्या चल रहा है? अभी इन्होंने कहा कि वो मुस्तदरक हाकिम की रवायत पेश करते हैं। मुस्तदरक हाकिम में क्या है कि तरक्तु फीकुम, कि मैं तुम्हारे बीच में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, लन तज़िल्लू मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा, किताब अल्लाह व सुन्नती, जब तक इन दोनों को पकड़े रहोगे गुमराह नहीं हो सकते, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत है। तो ये शख्स, ये साहब जो अभी इन्होंने कहा था, इनके मुंह से निकला था, पीछे जाके कोई घुमा के देख ले, कि मुस्तदरक हाकिम की रवायत क्यों पेश करते, सही मुस्लिम की रवायत क्यों नहीं पेश करते? अल्लाह के बंदे, सही मुस्लिम की रवायत में ऐसा नहीं है। मुस्तदरक हाकिम की रवायत में जो बात है वो बात सही मुस्लिम की हदीस में नहीं है। अली मिर्जा झूठ बोलता है। ये सारी जो शियों की टीम है, रवाफिज की टीम है, ये झूठ बोलती है, अपना घंटों मफहूम लाके उस हदीस में गुजारी। सही मुस्लिम में हरगिज नहीं है कि मैं खामोश, सही मुस्लिम की हदीस में हरगिज नहीं है कि दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जब तक दोनों को पकड़े रहोगे, एक कुरान एक अहले बैत, कभी गुमराह नहीं हो सकते। ऐसा सही मुस्लिम में नहीं है, ऐसा सही मुस्लिम में बिल्कुल भी नहीं है। सही मुस्लिम में क्या है? सही मुस्लिम में यह है, मैं आपको बता दे रहा हूं सही मुस्लिम में क्या है। देखिए सही मुस्लिम में ये अल्फाज हैं कि वाना तारिकुम फीकुम सकलैन, कि मैं तुम्हारे बीच में दो चीज सकलैन छोड़ के जा रहा हूं। अब क्या है? अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, उनमें से एक किताबुल्लाह है। अब किताबुल्लाह में क्या चीज है? किताबुल्लाह की खूबी क्या है? अब देखें हदीस में फीहिल हुदा व नूर, इसमें हिदायत है और रोशनी है। फखुदू बि किताबिल्लाहि वस्तमसिकू बिही, तो अल्लाह की किताब को पकड़ लो, उससे चिमट जाओ, उससे इस्तिमसाक करो। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने कहा ना, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और तफरका मत करो। तो यही बात यहां पहले नंबर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं। तो कहते हैं फहत्ता अला किताबिल्लाह व रगब फी, किताबुल्लाह पे उभारा, उसकी तरगीब दी। सुम्मा क़ाल, उसके बाद क्या कहा? व अहलु बैती, और मैं अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूं। उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, मैं अपने अहले बैत के सिलसिले में तुम्हें अल्लाह को याद दिलाता हूं, यानी अल्लाह का वास्ता देता हूं कि मेरे अहले बैत का जो है ख्याल रखना। तो ये जो दूसरी बात है उसमें अहले बैत की इत्तिबा या अहले बैत की पैरवी का हुक्म दूर दूर तक नहीं है। हरगिज ये बात नहीं है सही मुस्लिम में जो अली मिर्जा और इसकी पार्टी गढ़ रही है। सही मुस्लिम में कतई इस बात की जिक्र नहीं कि अहले बैत की पैरवी करो। अहले बैत का ख्याल रखने के लिए, अहले बैत के हुकूक की निगहदाश्त करने का हुक्म है। इसलिए जो शख्स ये कहता है कि मुस्तदरक हाकिम में जो है कि दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जब तक दोनों से चिमटे रहोगे गुमराह नहीं होगे, वही बात सही मुस्लिम में है कि दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक किताबुल्लाह एक अहले बैत, जब तक इन दोनों से यानी किताबुल्लाह अहले बैत से चिमटे रहोगे गुमराह नहीं होगे। ये झूठी रवायत है, सही मुस्लिम में नहीं है। ये घंट है अली मिर्जा का। कोई अली मिर्जा का कोई एक मेरी बात खत्म हो जाएगी तो बोलना, सही मुस्लिम में किधर लिखा हुआ है कि अहले बैत की पैरवी करो? हदीस है, करते हो, घर से बना के लाते हो और कहते हो अहले हदीस सुनाते नहीं है। तो इस हदीस में यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि भाई ये छोड़ के जा रहा हूं किताबुल्लाह और अहले बैत का ख्याल रखना। और क्यों ना कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने?
अल्लाह के हुक्म से अहले बैत को विरासत में हिस्सा नहीं मिला, अल्लाह के हुक्म से अहले बैत को सदका से ज़कात से काट दिया गया। जब अहले बैत पर इतना बड़ा बोझ डाला गया है कि वो सदका नहीं खा सकते, ज़कात नहीं खा सकते, अल्लाह के रसूल की विरासत नहीं मिली, तो जाहिर सी बात है कि उम्मत का यह हक बनता है कि उम्मत अहले बैत का ख्याल रखे, उम्मत अहले बैत की देखभाल करे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत के हुकूक की निगहदाश्त का हुक्म दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का हुक्म मानते हैं। कौन अहले हदीस है जो कहता है कि अहले बैत के हुकूक की अदायगी नहीं करना चाहिए? लेकिन आप जो कहलवाना चाहते हो कि अहले बैत की पैरवी का हुक्म दिया गया, ये हदीस में नहीं है। मेरी बात खत्म हुई। आपने मिसाल दिया था मुस्तदरक हाकिम की, मुस्तदरक हाकिम वाली बात यहाँ पे नहीं है। आप दिखा दो कि मुस्तदरक हाकिम वाली बात सही मुस्लिम में है जी। अब उम्मीद करते हैं कि वो सुन रहे होंगे अच्छे से। इमाम भाई, आपको अभी सही जवाब देना है, मतलब शेख ने जो सवाल पूछा वो जवाब दीजिए, समझदारी से जवाब दीजिए। इन्होंने, मेरा सवाल यह है कि इन्होंने कहा कि मुस्तदरक हाकिम की रवायत क्यों पेश करते हैं, सही मुस्लिम में रवायत मौजूद है। इसका मतलब यह है कि जो बात मुस्तदरक हाकिम है वो सही मुस्लिम में, तो इनसे कहना है कि जो बात सही मुस्लिम में क्या है, किताबुल्लाह सुन्नत रसूल की पैरवी करना है। तो सुन्नत रसूल की जगह पे क्या अहले बैत की पैरवी का हुक्म ऐसा है तो सही मुस्लिम में हमको दिखा दे। बताओ इमाम भाई, बताओ। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा से आते वक्त 2 महीने पहले, 2 महीने कब्ल बलीग खुतबा इरशाद फरमाया था, जहां पर पूरे हज वाले पूरे चले गए थे। वहां पर सिर्फ अहले शाम और अहले मदीना थे। उनको बेसिकली डराया जा रहा था कि तुम लोग मेरे अहले बैत के साथ हुस्न सलूक करना और उनका ख्याल रखना। ये बात मैं बोलना चाह रहा हूं आपको। सिग्नल में बेसिकली इमाम भाई, थोड़ा सा सिग्नल में आ जाओ जी। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि अहले बैत के बारे में जो है, हुस्न सलूक के बारे में है कि उनकी पैरवी नहीं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि उनके साथ हुस्न सलूक करना, उनके बारे में अल्लाह का खौफ दिलाता हूं तुम्हें। ये अल्लाह के नबी क्यों बोले? ये इसलिए बोले। अच्छा, ये अरे भाई, ये आपने आईप्लस पढ़ी है भाई, जा रहा था इसमें। आपने थोड़ी, आप दूसरी तरफ चले गए। आप जो कह रहे हैं उसे कौन मुनकिर है? आप कह रहे हैं कि अहले बैत के हुकूक की तरफ अल्लाह के नबी ने तवज्जो दिलाई, ये कौन नहीं एक्सेप्ट करता, हम भी मान रहे हैं। लेकिन आपके अल्फाज मैंने सुने हैं, हमारे इस चैनल पे रिकॉर्ड है। आपने कहा कि अहले हदीस मुस्तदरक हाकिम के हदीस क्यों पढ़ते हैं, सही मुस्लिम के हदीस पढ़ना चाहिए। तो आप बिल्कुल मिसाल देते हुए कहना चाहा कि सही मुस्लिम में जो दोनों की पैरवी का हुक्म इधर ही है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरी बात सुनिए, अहले बैत की पैरवी का हुक्म कहां है? यानी सुन्नत रसूल की जगह अहले बैत को कहां रखा गया, मुझे बताइए। मुझे मालूम है आप वहां भी है, चीखा मत मारिए, मेरी बात तहम्मुल से सुनिए, तहम्मुल से सुनिए मेरी बात। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद तहम्मुल से सुन रहा हूं। आप आपने नासिबियत का फतवा पे चढ़ा है, और बिल्कुल अहले हदीस फिरका पक्का नासबी है भाई। सुनो इमाम भाई, नाम जैद भाई, ये फजूल की गुफ्तगू कर रहे हैं। इन्होंने ये दावा किया था कि ये अहले हदीस उलमा अहले बैत के फजाइल नहीं बयान करते या वो हदीस बयान नहीं करते। भाई ये पूरा मैं भी तलाश करने लगा, मैं अभी इसको खामोश कर दी, ये बदसवानी कर रहा है बंदा। ये आपको मैंने अभी देखा कि ये तो पूरा अहले बैत के फजाइल और हुकूक पर शेख नसार मदनी का आईप्लस टीवी पे अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरा सीरीज है, पूरी सीरीज है, आप उसको जा करके पढ़ें अगर मुमकिन हो तो। भाई ये जो एडमिन है वो लिंक लगा दे नीचे। तो ये दावा करना कि लिंक लगा दीजिए, तो ये दावा करना कि अहले हदीस अहले बैत के हुकूक और फजाइल पर बयान नहीं करते, ये तो मतलब सामने का झूठ है। जिस चैनल पर आकर के आप ये दावा कर रहे हैं, उसी चैनल पे 1-2 दर्स नहीं, पूरी सीरीज है अहले बैत के फजाइल के बारे में भी और उनके हुकूक के बारे में। जी नहीं शेख साहब, सुनिए एक मिनट भाई, अभी इनको खामोश करिए, बदतमीजी कर रहे हैं करके। यहाँ पे आपको बात करना, आप बात करते हैं, आप ये नासबी है, ये इल्जाम नहीं लगाते, सुकून से बात करते। वैसे भी हमने किसी को टाइम दिया हुआ है। इन्होंने दावा ये किया था कि हम ये हदीस बयान नहीं करते हैं या अहले बैत के फजाइल बयान नहीं करते, तो उस दावे का रद्द करने के लिए इतना काफी है कि आप सिर्फ अहले बैत के फजाइल लिख करके आईप्लस टीवी लिख करके सर्च करें ना, इंशाल्लाह आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आपका ये दावा झूठा है। हकीकत ये है कि आप अहले हदीस उलमा को ना सुनते हैं ना उनकी किताबें पढ़ते हैं। ये दावा आपने किसी से सुना और वैसे यहाँ पे आके नकल कर दिया, तो इस दावे में कोई बुनियाद नहीं है। बाकी हमने किसी और को टाइम दिया हुआ है, आपसे इंशाल्लाह अगली मरतबा नया एतराज लेके आइएगा, उस पर फिर से गुफ्तगू करें। जी नहीं हदीस सकलैन, मेरी बात सुनिए, मेरी बात मुकम्मल सुनिए, मेरी बात मुकम्मल उसमें आप सुन लीजिए, उसमें आपको हदीस सकलैन भी मिल जाएगी। मेरा शेख किफायत ने भी बताया ना, हजरत हसन हुसैन की फजीलत पर उनके जो दर्स है वो जाकर के सुन लीजिए, वहां भी आपको तफसील मिल जाएगी। चलिए, नहीं हदीस सकलैन आप लोग कभी बयान नहीं करें भाई साहब, आपको वहां मिल जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी शेख किफायत का सवाल पेंडिंग है। शेख किफायत ने जो आपसे सवाल बोलिए,
आपने सुना कि नहीं सुना शेख किफायत ने जो सवाल पूछा आपसे? क्या सवाल, क्या आपने फिर से रिपीट करिए सवाल, फिर से रिपीट भाई करिए। आपने सही मुस्लिम, सही मुस्तदरक हाकिम की हदीस का हवाला दिया कि अहले हदीस उसको जी। काहे को पढ़ते हैं, जबकि सही ऊंचे दर्जे की हदीस मौजूद है। तो आपके कहने का मतलब है कि जो बात मुस्तदरक हाकिम है वही बात सही मुस्लिम में है। तो मैंने आपसे पूछा है कि मुस्तदरक हाकिम में किताबुल्लाह की पैरवी करना, सुन्नत रसूल की पैरवी करना, तो क्या सही मुस्लिम में किताबुल्लाह की पैरवी के साथ साथ अहले बैत की पैरवी, अहले बैत की इत्तिबा का हुक्म है? ये मैं जी नहीं, मेरा जवाब सुनिए। हाँ, मेरा जवाब सुनिए। नहीं 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 हाँ बताइए। नहीं, मैं इसलिए मिला रहा हूं, मेरा जवाब सुनिए। इसमें यह है कि अल्लाह की किताब की पैरवी करना और मेरे अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ हुस्न सलूक करना, उनके बारे में अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। तो ये किसको खौफ दिला रहे थे? ये बेसिकली अहले शाम, ये बेसिकली अहले शाम, अहले शाम और अहले मदीना को डराया जा रहा था। इसका कौन मुनकिर है भाई? अहले हदीस के उलमा की किताबें हैं फज़ाइल अहले बैत पे, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह की किताब, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के मकालात हैं। उस पूरे सिलसिले आप देखिए, कदीम जदीद हर दौर में अहले बैत के फज़ाइल पर अहले हदीसों की किताबें मौजूद है। अहले बैत ये नहीं बोल रहा हूं आपको, मैं फज़ाइल के बारे में मैं आपको ये बोल रहा हूं कि स्पेसिफिक हदीस सक़लैन के बारे में कोई एक निसार मदनी का जो फज़ाइल अहले बैत है, बाकायदा मैंने उनको खास बोल के रिकॉर्ड करवाया है। शान हसन हुसैन पर जो सीरीज, ये मैंने ऑर्डर कर जाके जिन लोगों ने रिकॉर्ड किया पूछे, हमने रिकॉर्ड करवाया है। ये सारी सीरीज हमने चलवाई है जो अपने चैनल पे, और आप कह रहे हैं कि मेरी बात सुनिए। मेरे ख्याल से अभी आज के लिए आपने जो अपना बेस्ट सवाल पूछे उसका अच्छा जवाब हो गया। जरा इस वीडियो को 2 बार इत्मीनान से देख लीजिएगा और अगले हफ्ते कोई जबरदस्त सवाल लेकर आओ जो मेरे आखिरी जुमले हासिल हो। मतलब देखो मेरे भाई सुनो ना यार, मेरे भाई सुन लो, तासुब के शिकार मत होना। जो आपने कहा ना आप लोग ये हो, इसकी वजह से आप हक से दूर हो रहे हो। आप क्या करो ना, वो तासुब छोड़ दो, एक ओपन माइंड से देखो और इस बात को समझने की कोशिश करो, और आपको जो लगता है ना सबसे बड़ा सवाल, वो लेके आओ अगले हफ्ते इंशाल्लाह।